Ladies and gentlemen, good day and welcome to Praveg Limited Q2 FY24 Result Conference Call hosted by Kirin Advisor. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that the conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Gopal Chandak from Kirin Advisor. Over to you, sir. Thank you. On behalf of Kirin Advisors, I welcome you all to Praveg Limited Q2 FY24 con call. From management side, we have Mr. Vishnu Patel, Chairman, Mrs. Bijal Parikh, Finance Director, and Mr. Mukesh Chaudhary, Company Secretary. Now I hand over call to Mrs. Bijal Parikh. Over to you, ma'am. Thank you. Good afternoon, everyone. I extend a heartfelt welcome to each one of you for joining us for the conference call of Praveg Limited, where we aim to delve into our exceptional performance during Q2 financial year 2023-24. Praveg Limited, a trailblazer in the industry, has firmly established its footprint across diverse business segments such as tourism and hospitality, as well as exhibition and event management. Our strength lies in our independent and sophisticated infrastructure, seasoned manpower, and an in-house creative studio, which collectively give us a competitive edge to cater to diverse needs across business verticals. We take immense pride in operating prestigious resorts and hotels, including but not limited to Tent City Narmada, Statue of Unity, White Run Resort, Ranotsav, and Tent City Varanasi, among others. As of now, our ongoing projects span an impressive 3 lakh square meters with a room capacity of 640. Allow me to shed light on some key developments and financial highlights from Q2 financial year 24. Operations at Tent City Chakrapithi Beach View and Tent City at Jaipur Beach, Daman commenced in August. We are proud to announce that Praveg has received a work order for developing 2 tent cities in Ayodhya, Uttar Pradesh, Brahmakud and Saryu Ghat. With 6 properties currently operational and 12 more in pipeline, we foresee robust growth in the second half of the year. To mitigate the impact of seasonal earnings fluctuations, Praveg is strategically investing in resorts and hotel properties that operate year-round. Our recent opening of 2 beach resorts in Daman and Diu exemplify this proactive approach. Now let's take a closer look at Praveg's financial performance in Q2 financial year 24. Although the current quarter experienced a dip in revenue, primarily attributed to reduced exhibition revenues compared to Q2 2023, it's noteworthy that our revenue from resorts maintained its stability. The augmentation of resort capacity towards the end of Q2 2024 is poised to fully materialize in H2 2024. During Q2 financial 24, the operationalization of our 6 resorts led to an impressive total income of rupees 14.46 crore. The EBITDA stands strong at rupees 4.48 crore, boosting a robust EBITDA margin of 30.61%. Notably, our net profit reached to rupees 2.1 crore, reflecting a formidable net profit margin of 14.35%. Despite a 15.29% dip in total income compared to the same quarter last year, our optimism remains unwavering for the second half of financial year 2024. This optimism is fueled by the strategic scaling of our events and exhibition business and the timely initiation of upcoming hospitality projects. It's worth acknowledging a year-on-year increase of over 68.50% in depreciation and amortization charges during Q2 financial year 24, primarily due to significant capital expenditures. However, our steadfast focus remains on identifying avenues for expense optimization and operational refinement to further enhance our financial performance in the upcoming quarters.
The strategic initiatives undertaken by Praveg position us optimistically for a promising future. We believe that our commitment to excellence, coupled with the unfolding potential in our key business sectors, will drive sustained growth and prosperity. We have initiated recruitment to build a strong professional team that will play a pivotal role in supporting our growth. These efforts are expected to make a positive impact on our overall performance for the current year. Looking ahead, we anticipate our operational resource to achieve occupancy between 45 to 45% in the upcoming quarter, generating an ARR of 7,000 to 9,000. Now, let me highlight a few recent developments. We have commenced two luxury resorts at Dholavira and Bytran Resort, and Praveg's Grand Elogia, a five-star hotel in Ahmedabad, Gujarat. As part of our business acquisition strategy, Elogia in Private Limited has merged with Praveg Limited. Additionally, we have received a work order for the development, operation and management of Tent City at Kihim, Maharashtra, Kachigam, Daman, Tent City, Nagwa Beach, Diu. I would like to draw your attention to our upcoming resorts, including beach resorts at Gogla Beach, Ayodhya, Velavadar, Udaipur, Javai, Adalash, Nagwa Beach, Kachigam at Daman, Tent City at Maharashtra, Ranthambore, with a combined room capacity of 320 plus. As we move forward, our commitment to nurturing our hospitality business remains at the forefront of our strategy. With the anticipated growth of our events and exhibition sector, we foresee a powerful synergy that will propel our overall operations to new heights. Before we delve into the question and answer session, I want to express my sincere gratitude to all our stakeholders for being an integral part of our growth journey. Your support and involvement have played a crucial role in our success, and we genuinely appreciate your valuable contribution. With this, I would like to open the floor for questions and answers. Thank you once again for your presence and continued support. Thank you. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handset while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Ladies and gentlemen, we have lost the management connection. Please stay connected while we reconnect them. Hello. Thank you for patiently holding. We have the management team back on call. The first question is from the line of Bhavin Pandey from Athena Investment. Please go ahead. Hey, greetings of the day team and congratulations on a wonderful set of numbers. Just wanted to check on how these contracts are structured when we are putting these tents across geographies. Is it an arrangement with the government and how subject to discontinuation they are? Yeah, Bhavin, thank you for a kind question. मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि सारी जो वर्किंग ऑफ प्रवेग उसका मैं थोड़ा आपको डिस्कशन करना चाहूँगा. नंबर 1, हमारी जो मॉडल है इसके अंदर 2 टाइप के लैंड अवेलेबिलिटी होती है. एक बाय टेंडर पे होती है और एक हमारी जो टीम है एक्विजिशन टीम उसको लगता है कि एक्सपीरियंशियल हॉस्पिटैलिटी का ये जो प्लेस है इसमें टेंडर्स और गवर्नमेंट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसके अंदर उनका जो एक्विजिशन है वो हम परचेज करके करते हैं या लीज मॉडल पे करते हैं. और जो परचेज है वो तो एंड्यूरिंग लॉन्ग टाइम जब तक हम चाहे तब तक चला सकते हैं. और जो लीज मॉडल है इसमें लॉन्ग टर्म लीज होता है 10, 20, 30, 40 साल का. तो वो 2 मॉडल जो प्राइवेटली ओन लैंड है इसका एक्विजिशन के हैं
और तीसरा है गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट आते हैं पीपीपी मोड में, कि जिसमें गवर्नमेंट चाहती है वो टूरिज्म को डेवलप करने के लिए वो लोग का सर्वे होता है अवेलेबिलिटी और सप्लाई डिमांड के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से। कई बार प्लेस भी मार्केट करना चाहती है गवर्नमेंट, टूरिज्म को प्रमोट करने चाहती है, तो वो पीपीपी मोड में जो टेंडर्स आते हैं इसमें भी एक्विजिशन होता है। तो ये जो 3 मॉडल है इसके अंदर हमारा एक्विजिशन होता है। दूसरी बात बताऊं कैसे स्ट्रक्चरिंग होता है। स्ट्रक्चरिंग 2 टाइप का होता है। जो कंस्ट्रक्शन मॉडल है इसमें 2-3 मॉडल है। एक है ऐसी कोई जगह है जहां एनवायरमेंट फ्रेंडली और एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए काम करना है, वहां हम टेंटेड स्ट्रक्चर में काम करते हैं। जो हाई एंड टेंट स्ट्रक्चर जो हम बोलते हैं उसके हिसाब से हम काम करते हैं। जहां मेरे को लगता है कि टेंटेड स्ट्रक्चर विल नॉट वर्क बट वी कैन गेट अ क्लियरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट साइड फॉर सर्टेन साइड लाइक अ सी साइड, तो ऐसी कोई जगह पे हम सेमी टेम्पररी स्ट्रक्चर यूज करते हैं। कंपोजिट पैनल, कंपोजिट सीमेंट सीट, कंपोजिट गैल्वेनाइजिंग मेटल, काफी कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर बना के हम चलाते हैं। जहाँ मेरे को लगता है कि वहाँ टूरिज्म के हिसाब से ERM के हिसाब से अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है, वहाँ हम सेमी टेम्पररी स्ट्रक्चर करते हैं। और तीसरा मॉडल है सिविल स्ट्रक्चर एंड सेमी टेम्पररी स्ट्रक्चर का मिक्सर, जहाँ हमारी कैपेक्स लो आए और काम करने का हो, ऐसे स्ट्रक्चर में सिविल स्ट्रक्चर प्लस कंपोजिट पैनल का स्ट्रक्चर यूज होता है। ये तीनों के अंदर कॉस्ट डिफरेंशिएशन होता है। अगर टेंटेड स्ट्रक्चर है तो वहाँ 20 लाख 15 से 20 लाख के पर रूम के बजट होते हैं। जहाँ सेमी टेम्पररी स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ 25 से 30 लाख रुपया पर रूम का स्ट्रक्चर होता है, दैट इंक्लूड कॉमन एमिनिटीज। सही वे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर होता है वो 40 लाख से 1 करोड़ तक की कॉस्ट आती है, वो जो नॉर्मल होटल्स होती है, तो वो हम ट्राई करते हैं कि 40 लाख से नजदीक में काम करें। तो वहाँ एक्सेप्शनल काम है, वहाँ हम 1 करोड़ तक बजट जाते हैं, बाकी 40 to 1 करोड़ के अंदर हम काम करते हैं। थैंक यू भाविन। Okay, sir. Wonderful. Thank you for the elaborate answers. Could you just help me with the margin profile? मतलब कौन सा ये जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया ज्यादा ल्यूक्रेटिव होता है और कहाँ कैश फ्लो कलेक्शन ज्यादा आसान होता है, या जो भी डिफरेंस आपके ओपिनियन में हमको हेल्प कर अंडरस्टैंड करने में वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस सर। देखो ये तीनों जो एक्विजिशन बताए इसमें इट डिपेंड अपॉन विच टाइप ऑफ एक्विजिशन एंड विच टाइप ऑफ पोली मोनोपोली इज क्रिएटेड। सम प्लेस ऐसी होती है कि जहाँ सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, जहाँ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू एनवायरमेंट एंड डिफरेंट इश्यूज। कई बार प्लेसमेंट ऑफ द लोकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये सारी मैटर को इवेल्युएट करते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कैसे काम किया जाए। एनवायरमेंट भी ध्यान रखना है, सप्लाई डिमांड भी ध्यान रखना है, लोकेशन भी ध्यान रखना है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। और आपको मैं एक बताना चाहूंगा, कोई भी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में एक पीक पे आने में 3-4 साल लगते हैं, तो हमारे केस में भी ऐसा है, बट एक्सेप्शन है, इसमें डिमांड सप्लाई एक्सेप्शन होता है। वो हमारी स्ट्रेटेजिक टीम डिसाइड करके डिमांड सप्लाई के हिसाब से ये लोकेशन अच्छा जमेगा, तो मेरे को लगता है कि फर्स्ट सेकंड साल में उसको पिकअप आने में आसानी रहेगी, तो उसको हम ज्यादा फेवर और चूज करते हैं। ओके। और ये जो अपना जैसे आई कैन सी अभी जो कच्छ में अपन जो टेंट लगाते हैं रन ऑफ कच्छ में, दैट वुड गिव अस लेट्स से अ गुड Q3 Q4, सो उस हिसाब से आई थिंक देयर इज सम सीजनैलिटी इन आवर बिजनेस। तो उसके लिए अभी मतलब ये डाइवर्सिफाइंग के बाकी के क्वार्टर्स में भी अपना जो वो है। एंड सेकेंडली जस्ट टू फॉलो अप ऑन दिस, जो गवर्नमेंट ऑफ कच्छ के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, हैज इट बीन चेंज्ड या इट हैज बीन जस्ट द वे इट वाज सिंस द टाइम वी गॉट इन? देखो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट चाहिए के हिसाब से होते हैं। पीपीपी मोड में 5 साल से लेके 25 साल 30 साल तक के होते हैं, 40 साल के होते हैं, इट डिपेंड तो कैसा टेंडर है, और वो कम के हिसाब से हम इवेल्युएट करके स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। आपको मैं समझाना चाहूंगा कि 5 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो हम टेंटेड स्ट्रक्चर को ही यूटिलाइज करते हैं, और एक्सेप्शनल लोकेशन है तब हम सेमी टेम्पररी में जाते हैं, क्योंकि दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस है, पर रूम 10 लाख रुपए का। तो वो अगर मेरे को लगता है कि उसकी हम रिकवरी कर पाएंगे 5 साल में, तब हम सेमी टेम्पररी में जाते हैं। अदरवाइज वी आर बीइंग ऑन टेम्पररी स्ट्रक्चर लाइक टेंट। टेंट में भी काफी प्रकार है, बहुत हाई एंड टेंट भी होते हैं,
जो आप अगर अफ्रीकन सफारी में आपने विजिट किया तो आप देख सकते हैं। तो इट डिपेंड। तो हम अच्छा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 5 स्टार कैटेगरी को लगे, उसको कंपेयर कर सके, ऐसे ही स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करते हैं। Okay, okay. Wonderful, wonderful. Thank you so much. If there's any follow-up, I'll join back again. Sure. Thank you. Thank you. Thank you. The next question from the line of Vaibhav Shah from Cogent Fine Invest. Please go ahead. Hello. हाँ जी, वेलकम। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। मेरे क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अपना जो नए प्लान आ रहे हैं, जो नए अपकमिंग अपन रिजॉर्ट्स है, जो अपन ने प्रेस रिलीज में फाइल किया है, तो तकरीबन अपने 8 से 10 रिजॉर्ट्स नए जो प्लान आउट हो रहे हैं, तो उसका स्टेटस क्या है और अपना ये लैंड पार्सल की साइज कितनी रहेगी? लैंड पार्सल इज डिपेंड, बट मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देना चाहूंगा। 10 सिटी नब्दा है हमारा, ऑलरेडी रनिंग है। मैं एक क्वेश्चन का आंसर बारिन भाई का रह गया है, वो मैं आपको बोलना चाहूंगा। वो था रणोत्सव को लेके कुछ था क्वेश्चन। रणोत्सव के आई थिंक सीजनल के हिसाब से, सीजनल के हिसाब से था क्वेश्चन। मैं उसका आंसर देना चाहूंगा। हमारे 2 ही टेंट सिटी सीजनल है। हमारा फर्स्ट 2 क्वार्टर में जो इश्यू है वो अब हिस्टोरिकल बनने वाले हैं, क्योंकि आज तक प्रवेश के पास एक केवड़िया था और एक कच्छ था। करेक्ट सर। कच्छ सीजनल था क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 में। एक रीजन ये भी था कि क्वार्टर 3-4 में परफॉर्मेंस आता था, 1-2 में नहीं आता था। दूसरा रीजन सीजन भी है। मई, जून, जुलाई, अगस्त इज अ वेरी हार्ड सीजन इन रेन सीजन, तो उसके अंदर हमारा केवड़िया कम चलता है। आप समझ सकते हैं बात को, एक ट्रैवल इंडस्ट्री का ट्रेंड है। तो अगर एक्सपेरियंशियल हॉस्पिटैलिटी में जो बिजनेस में जो लोग हैं, उसको 3rd एंड 4th क्वार्टर में ही अच्छा बिजनेस मिलेगा। फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर डिपेंड अपॉन द लोकेशन। तो ये जो सीजनल वाली जो एक्टिविटी थी हमारी, वो हमने काफी कंट्रोल करने के हिसाब से ही हमने जो भी जो नए टेंट सिटी लगाए हैं वो सारे फुल ईयर रिसोर्ट है हमारे। आप उसको टेंट सिटी नहीं बोल सकते। टेंट सिटी भी है, सेमी टेम्पोररी है, एक टाइप का आपको ऐसा लगेगा जैसे होटल्स है। लेकिन अगर आप कोई दरिया की क्लिप पे खड़े हैं तो आपको एक अच्छा फीलिंग देगा वो हमारा। अगर आपने दमन किसी इन्वेस्टर जो भी कॉन्कॉल में है, उसने दमन में अगर विजिट किया है, दीव में विजिट किया है, तो उनको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंड कि कैसे लोकेशन है। तो सीजनल का हमने टोटल मिटिगेशन कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट ईयर से आपको क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में इससे साइजेबल बिजनेस देखने मिलेगा। ओके। अब स्टेटस क्या है वो बताना चाहूंगा। 10 सिटी नब्दा इज रनिंग, WRR मतलब वाइट रन रिसोर्ट इज रनिंग, इज सीजनल, ओनली 1 सीजनल। 10 सिटी वाराणसी, इट्स डिपेंड अपॉन हाउ वी गेट रेनी सीजन क्लियरेंस। तो उसके हिसाब से है जो वाराणसी में लगता है। और इसमें आप सबको जो लास्ट ईयर कोई इन्वेस्टर ने विजिट किया हो तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स था। लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट क्लियरेंस और इसमें ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्लियरेंस का भी एक्सपेक्टेशन है हमारा। अगर वो इसका क्लियरेंस आ जाएगा तो ये भी सीजन में हम चालू करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट सीजन में हम चालू करेंगे। और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम अयोध्या में और अयोध्या 1 में लगा रहे हैं। तो उसका टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अयोध्या 1-2 में जा रहा है, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम करने जा रहे हैं। इसी तरह दमन 1 इज ऑलरेडी रनिंग, गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। उसकी मैं आपको बताना चाहूंगा, उसकी सीजन एक रिवर्स है, वो आपको बताना चाहूंगा। उसका बिजनेस टोटल अप्रैल, मई, जून, जुलाई में है। ओके। दमन 1, दमन 2 अप्रैल, मई, जून, जुलाई इज लाइक एनीथिंग। 80% तक ऑक्यूपेंसी के हमारे रिकॉर्ड है, राइट। लेकिन सेकंड क्वार्टर में लोएस्ट है ड्यू टू रेन सीजन। तो 3rd क्वार्टर में थोड़े इंप्रूव हो गए, 4th क्वार्टर में और इंप्रूव हो गए। 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे दमन 1, दमन 2। इसी तरह दीव 1, दीव 2, ये बच्चों की जब सीजन आती है मई महीने में, जून महीने में, तो बहुत कुछ जुलाई तक उसका परफॉर्मेंस मेरे को मिलता है। तो ये दीव 1, दमन 2, वाराणसी WRR इज 10 सिटी नब्दा इज a running season, running resort,
आउट ऑफ 6 1 इज वाराणसी इज नॉट स्टिल स्टार्टेड, सो वो अभी आप मत काउंट करें। तो 5 रिसोर्ट काम कर रहे हैं। इसमें हमने दमन जो 2 है वो अभी स्टार्ट किया है, 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। D1 दमन 2 इज ऑलरेडी स्टार्टेड, D1 इज ऑलरेडी स्टार्टेड। अभी हम जो करने जा रहे हैं इस सीजन में नवंबर दिसंबर में, तो मैं वही आपके सब लोगों को ये माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये सेकंड क्वार्टर के अंदर हमारे 5 रिसोर्ट चालू थे, 5 में भी 2 सीजनल है, यानी कि 4 चालू थे, और 4 में भी 2 रिसोर्ट तो हमने 15 अगस्त को स्टार्ट किया, यानी कि 3 रिसोर्ट ही थे आपके हिसाब से। इसीलिए आपको परफॉर्मेंस में आपको लगेगा कि टर्नओवर अचीव नहीं हुआ। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा साथ साथ कि हमारा टोटल इवेंट एग्जीबिशन का जो मैन पावर है, टोटल डिप्लॉयमेंट हमारे टेंट सिटी डेवलपमेंट्स में है। आप समझ सकते हैं कि जो 2 टेंट सिटी थी उसकी जगह 20-22 टेंट सिटी का एक्विजिशन किया है हमने, तो उसको रन अप करने में कितना मैन पावर चाहिए, डिप्लॉय करना पड़ेगा, कितना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, सारी कैपेबिलिटी चाहिए। तो सारी कैपेबिलिटी हमने रिसोर्ट एक्टिविटी में डेवलप करने की है। इसकी वजह से एग्जीबिशन के जो बिजनेस है वो लास्ट ईयर 25 करोड़ के थे, ये फर्स्ट हाफ में 12 करोड़ के हैं। ओके, यानी कि 12 करोड़ का बिजनेस हमने लॉस किया है। टू गेन समथिंग, अगर आपको कुछ अच्छा लेना है तो कुछ घुमाना है, तो ये इन्वेस्टर को 1-2 साल ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो साइकिल और इंडस्ट्रीज का नेचर है, वो हम जैसे लॉन्च किया दमन 2, दमन D1, अभी पब्लिक में इसकी अवेयरनेस होगी, हमारा सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है, हमारा सब ट्रैवल एजेंट स्ट्रॉन्ग है, पर जितना अवेयरनेस होगा कितना नेक्स्ट ईयर उसका बिजनेस में, हमारा फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर का बिजनेस 20% अप होता है ऐसे हिसाबों में। तो ये सारी साइकिल से पास हो रही है हमारी प्रोजेक्ट। तो वो एक ट्रेंड सेटर अभी इसलिए है कि अभी 3-4 रिसोर्ट के बदले में अभी ये जो थर्ड क्वार्टर इसमें इतने रिसोर्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। D2 फ्रॉम नवंबर, Ayodhya 1 from November, Grand Iloria is already started from November 1st, Dholavira is already started November 23, Velavar we are planning to start in December 23, that is, these 5 resorts is coming in this third quarter. Okay. So, out of this total 6, another 5 resorts is going to add in this quarter, which will be 11 resorts. Okay. Same way, our Udaipur is under construction, which we are expecting. Please listen this point. We are working on massive scale to run a total 20 resorts. We want to, सब चाहेगा, मैनेजमेंट भी चाहेगा, इन्वेस्टर भी चाहेगा, जितना जल्दी बने इतना, बट एक काम की एक कैपेबिलिटी होती है और काम की क्वालिटी भी होती है। ये हमारा घोघला बीच है, हमने 15 अगस्त को काम स्टार्ट किया था और ये 15 नवंबर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, महीना 3 महीना। तो 90 डेज के अंदर एक रिसोर्ट, और वो भी टेंट सिटी नहीं है, सेमी टेम्पररी स्ट्रक्चर वाले हैं रिसोर्ट। और एक घोघला में आप सब इन्वेस्टर को चाहूंगा कि आप घोघला में जाइए, घोघला दीव जाइए, बॉम्बे से सीधी फ्लाइट है दीव की, सवेरे जाइए और 1-2 नाइट रह के रिटर्न आइए, आपको रियल प्रवेश का सेंस मिलेगा वहाँ जानने के लिए। So rather than talking on this phone, I expect your visit also। उससे हमारे को 2 फायदा है कि आप विजिट करेंगे, आपको पता चलेगा, आप भी अंडरस्टैंड करेंगे प्रोजेक्ट के मॉडल को। सेम वे उससे हमारी अवेयरनेस भी बढ़ेगी। तो ये 5 रिसोर्ट हमारे जो जा रहे हैं उसको मिला के 11 हो गए। अगर वाराणसी चालू हो जाता है तो 11 होगा, वाराणसी नहीं होगा तो 10 होगा। ओके। अब मैं क्वार्टर 4 की बात करना चाहूंगा। हर बार मैं आपको अपडेट देता हूँ, इसीलिए मेरे को देना चाहिए आपको। तो छठा रिसोर्ट अभी जो नए जो 4th क्वार्टर में जो होने जा रहे हैं, जो 11 के बाद क्लास 12, 13, 14, 15 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उदयपुर एक हमारा अंडर डेवलपमेंट है। Ranthambore will be late by next year, but Udaipur will be, we are planning to launch in March. Same way, Javai we want to launch in March, but may happen to be 1-2 month difference of inauguration. आप समझ सकते हैं कि क्योंकि सारी कैपेबिलिटी डिप्लॉय करने के बावजूद भी ये रिसोर्ट इंडस्ट्रीज में क्लैरिटी, क्लियरेंस सब चाहिए मेरे को। तो उसको 1-2 मंथ आपको मेरे को प्लस टाइम देना पड़ेगा। बट हम नॉर्मली हमारी ट्रेड लाइन से करते हैं, बट 1-2 महीने का, 15 दिन से 1-8 महीने का प्लस माइनस होता है हमारे स्टार्ट होने में। तो जवाई का
अडालज मेरा मार्च में प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने का। दीव में तीसरा बीच लिया नागवा बीच, तो वहाँ टेंट सिटी बनाने जा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर है टेंट सिटी। और जो दीव में 2 रिसोर्ट है उसका स्ट्रक्चर है सेमी टेम्पररी, वो दोनों क्लिफ पे है, अच्छे एकदम सी बीच पे है। ये नागवा भी सी बीच पे है, उसमें हम टेंट सिटी करने जा रहे हैं, लो बजट लो कॉस्ट प्लानिंग के लिए, ARR के लिए। तो दीव में नागवा करने जा रहे हैं, दमन में कच्ची धाम करने जा रहे हैं, जो मार्च और अप्रैल के बीच में चालू हो जाएगा। किहिम बॉम्बे वालों के लिए खुशखबरी ये है कि किहिम और काशी दोनों का अलीबाग, उसका अलीबाग का वर्क ऑर्डर इसका आ गया है, उसमें हम वर्किंग करना चालू किया है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि Q4 में वो भी हम चालू करेंगे। तो आपको जाने के लिए मजा, बॉम्बे वाले हमारे सारे BSE इन्वेस्टर जो भी ग्रुप है वो हमारे काशिद का आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो काशिद करने जा रहे हैं 40 रूम, इसी तरह कीम करने जा रहे हैं, वो भी हमारा प्रयास है Q4 में चालू करें। इसी तरह अयोध्या 2 है, वो भी हम Q4 में चालू करने के लिए जा रहे हैं। कुल मिला के 972 रूम अचीव कर रहे हैं, फ्रॉम 200 रूम to 1000 रूम इन 1 and some months, 1 and 5 months आप गिन सकते हैं। So that way we are working. Apart from that, we are also have merger with one group. So that one hotel is also added after approval of NCLT. So 21 resort is already on acquired status. Out of that, I would like to tell you that Ranthambore land is acquired for in the name of Praveg, but some clearance issue is there for the road and ways. So we are working on that. So I will say we are also trying to achieve this Ranthambore resort to be start in October next year at least. So that one resort and this Varanasi resort, उसको छोड़ के आप 19 + 2 21 रिसोर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च और Q1 के बीच में 19 तो हम करने के लिए प्रयास है पूरा। और उसके अलावा भी हमारी आईज है अच्छे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, तो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। कई बार हमारा अनाउंसमेंट ज्यादा देख के कई लोगों का ऐसा लगता है कि अनाउंसमेंट आता है, तो ये है केस ऑफ प्रवेग। प्रवेग इज अ गुजराती वर्ड, उसका मीनिंग है एक्सिलरेशन, और हमारा प्रवेग का स्लोगन है एक्सिलरेशन ऑफ आइडियाज। तो वो स्लोगन को पकड़ते हुए हमारे मिशन विजन से चल रहे हैं। काफी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमारी सारी टीम वर्क कर रही है, बट ड्यू टू अवर ग्रुप एंड एम्प्लॉय सपोर्ट एंड सपोर्ट ऑफ द ग्रुप वी आर अचीविंग दिस टारगेट। Okay. And I also would like to tell you that many Indian strategic locations we are keeping eyes on, and next year we at least इतना ज्यादा तो नहीं फेस करेंगे, but we will achieve further add in this resort also. Okay, sir. Because our team is built accordingly. और मैं आपको दूसरा कहना चाहूंगा कि आप फाइनेंशियल भी देखिएगा, हमारे कई खर्चे इनडायरेक्ट खर्चे डबल हो गए कॉस्ट में। और इसका रीजन ये है कि 4 रिसोर्ट या 3 रिसोर्ट पे लोड है ओवरहेड का। सारे रिसोर्ट का जो डेवलपमेंट चल रहा है वो तो हम कैपिटलाइज करते हैं, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्ट वहां के खर्चे करते हैं, बट इधर कॉल सेंटर बढ़ा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन टीम बढ़ानी है, सॉफ्टवेयर अपडेशन चल रहा है, ERP का चल रहा है, काफी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ रही है, PADA बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपका कोऑपरेशन रहे समझने में बिजनेस को। तो थोड़ा ओवरहेड हमारा तब एब्सॉर्प्शन तब होगा कि हम जब 15-20 रिसोर्ट पे पहुंचेंगे, तब सारे ओवरहेड एब्सॉर्ब कर पाएगी, क्योंकि उसके बाद हर साल 10 या 8 या 5 जो भी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं उसके हिसाब से हम करेंगे। तो 5-10 के रिसोर्ट के ओवरहेड हम एब्सॉर्ब कर सकते हैं 20 रिसोर्ट पे। अभी 3 रिसोर्ट पे पूरे कंपनी का ओवरहेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मीडिया सेगमेंट में आप देख सकते हैं कि 96 लाख का आउटले है, नेट आउटले खर्च है एक क्वार्टर में, तो वो भी एक खर्चा है, उसको भी हम मिटिगेट कर रहे हैं कि कैसे उसको बिजनेस को डेवलप करें। तो वो भी हमारा काम चल रहा है। तो वो भी एक खर्चा एडिशनल है जो हर क्वार्टर में 1 करोड़ का खर्चा आता है, और वो खर्चा एक्सेप्शनल है,
मैं उसको जीरो करने के लिए और उसको बीईपी से ऊपर लाने के लिए हमारी टीम प्रतिबद्ध है। ओके सर, ओके सर, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। अच्छा आइडिया दे दिया आपने सर। अभी जो अपना लैंड एक्विजिशन वगैरह जो हो रहा है, तो ये अपन लीज बेस पे ले रहे हैं, और ये इसमें से पीपीपी मॉडल पे कितने प्रोजेक्ट्स है, एंड एवरेज अपना लीज का कॉस्ट क्या आ रहा है, और अपना क्या साइज का लैंड पार्सल देखते हैं अपन कभी भी कोई एरिया में अपन डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, तो मिनिमम क्या साइज अपन मतलब बैक ऑफ द माइंड रखते हैं कि अपना मिनिमम इतना तो चाहिए, एक अच्छा एक 25-30 रूम्स का आपका स्ट्रक्चर खड़ा कर दे। हाँ जी, ये जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया 20 रिसोर्स, मैं उसकी बात करना चाहूंगा। और पहले मेरे जो भी इसमें से हमारे इन्वेस्टर ने जो लोगों ने पहले कॉल अटेंड किया उसके लिए भी फिर से इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम एक स्टेट में 20% से ज्यादा रिसोर्स करना नहीं चाहते। वी हैव वन रीजन कि 28 तक हम 50 से 60 रिसोर्स करना चाहते हैं ऑपरेशनलाइज। उसके अंदर 25 से 40% रिसोर्ट वी वांट टू डू ऑन प्राइवेट लैंड। Okay. There may be long-term lease of private land other than government and purchase of the land. So it's total 20 रिसोर्ट में से अडालज 30 साल की लीज है। उसको मिला के जवाई, रणथंभौर, उदयपुर, वेलावदर, धोलावीरा, ग्रांड इलोगिया मतलब अहमदाबाद एंड 1 इलोगिया अंडर एक्विजिशन, उसको मिला के 7 रिसोर्ट हमारे खुद के हैं, खुद की लैंड के और खुद की प्रॉपर्टी के हैं। तो जो हमारा रीजन है 25 to 40% ओन रिसोर्स आउट ऑफ टोटल रिसोर्स वी हैव अचीव्ड इन दिस ईयर। सो 7 रिसोर्ट 33% इज ओन रिसोर्स। ओके। उसके अलावा बाकी के जो 13 है वो पीपीपी मोड पे है, कंसीडरिंग एवरेज टेन्योर, कोई रिसोर्ट 5 साल के हैं, कोई 10 साल के हैं, कोई 30 साल के भी। ओके। लेकिन एवरेज मैं आपको वो कहना चाहूंगा 5 साल के रिसोर्ट है, वो जो 8 से 9 जैसे 5 साल के हैं, 5-7 रिसोर्ट ऐसे मिले 10 साल के आसपास है। अयोध्या 1, 2, देन आफ्टर कीम, काशीद, एज वेल एज अडालज, एज वेल एज कच्चीगाम, दैट ऑल आर 10 to 7 + 3 + 5, तो उसको कुल मिला के 10 साल के रिसोर्ट है। और उसका रिन्यूअल और सब्जेक्ट टू अप्रूवल नॉर्मली रिन्यू गवर्नमेंट करना चाहती है, सब्जेक्ट टू टेंडर भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू कंसेंट भी हो सकता है, तो नॉर्मली रिन्यू होते हैं। ओके, ओके। और सर वो अपना जो एवरेज लैंड पार्सल की मतलब साइज वगैरह मतलब वो क्या देख रहे हैं अपन? हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरा एक बात हुआ हमारा 25 to 40% ओन रिसोर्ट, दूसरा हुआ एक स्टेट में 20%, तो यानी कि हमारे जब 50-60 रिसोर्ट हो गए तो उसके 20% यानी कि 12 रिसोर्ट से ऊपर एक स्टेट में हम करना नहीं चाहते। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हालांकि काफी नीचे होगा बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो उसके ऊपर भी हम वर्क करते हैं। और लैंड पार्सल की बात बताऊं तो लैंड पार्सल अलग अलग है। 10 श्री नब्बा है 75,000 स्क्वायर मीटर, व्हाइट रेंज रिसोर्ट है। मैं सब अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, सब मेरे टेबल पे नहीं है, मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, तो काइंडली आई एम पुटिंग डिस्क्लेमर फॉर दैट। तो ये जो WRR है वो 7 से 15,000 मीटर के बीच में है। वाराणसी है 2 लाख मीटर में है, पूरा गंगा नदी का पट हमारे को दिया है। सेम डे दमन है तो 12,000 से 13,000 मीटर के आसपास है। दमन 2 में भी 12,000 के आसपास है। दीव के अंदर भी 12,000 के आसपास है। इसी तरह दीव 2 भी 12,000 आसपास है। अयोध्या इज 8,000 मीटर। मैं आपको अयोध्या के बारे में आप सबको बताना चाहूंगा, जो आपके लिए सब एक्साइटिंग बात है। मंदिर के एग्जैक्टली पीछे 300 मीटर जो उसको परिक्रमा रोड बोलते हैं, उसके अंदर ओनली 1 रिसोर्ट है। आई थिंक ओनली 1 रिसोर्ट दैट ओन्ड बाय प्रवेश, विच इज नियरेस्ट रिसोर्ट ऑफ अयोध्या। ओके। हाँ जी, तो अयोध्या है, ग्रैंड इलोगिया है, वो होटल्स है 5 सितारा, नन लेस देन इंडियन टॉप ब्रांड ओनिंग होटल। उनकी जो क्वालिटी है वही क्वालिटी की होटल है, एग्जैक्टली एडजॉइनिंग टू द ताज ग्रुप।
hotel on the Gujarat costliest road named Sindhu Bhavan Road. Dholavira, we have acquired huge land parcel. Dholavira, we have mass land purchase around. We can do 60 room, but we have done 20 room because Dholavira फ्यूचर का अपग्रेड करने जा रही है गवर्नमेंट, अभी इसको मार्केट करने जा रही है, तो अभी 20 लगाया, फिर 10 लगाएंगे, जरूर पड़ेगा और 30 बनाएंगे। लैंड पार्सल बहुत बड़ा लिया है, तो उसका हम भरपूर लाभ फ्यूचर में लेंगे। वेलावदर में भी अराउंड 50,000 मीटर लैंड लिए, सिर्फ 15 रूम बनाए हैं। मैं उसके लिए भी आप इन्वेस्टर सारे जो ग्रुप में है उसको इन्वाइट करूंगा कि आप वेलावदर भी जाइएगा जब चालू हो। वो एक प्रोजेक्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी बनने जा रहा है, जस्ट लाइक 7 स्टार 5 स्टार कैटेगरी इन वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट। तो वो एक है, 15 रूम है, कंपनी ने काफी इन्वेस्ट किया है उसके पीछे, और एक फ्यूचर में उसको 15 की जगह 30-40 करना है तो भी हम कर सकेंगे। बहुत बड़ी लैंड पार्सल लिया है, जहां ब्लैक बक अंदर आएंगे रिसोर्ट के अंदर, उसका भी प्रावधान किया गया है। मतलब पानी पीने आएंगे, हमने रिवर बनाया है, थोड़ा उसका पानी पीने के वहाँ प्रॉब्लम है पानी की जगहों के, तो हमारे गेस्ट काफी अच्छा प्राइवेसी के साथ लुत्फ उठा सकेंगे वेलावदर के रिसोर्ट का। उदयपुर के अंदर हमारे 30 रूम्स बनाने जा रहे हैं, उसमें कैपेबिलिटी 30 की कैपेबिलिटी है, पूरा माउंटेन लिया है और माउंटेन पे रिसोर्ट बनने जा रहा है जो यूनिक है। उदयपुर में आपको ये रिसोर्ट जो मैं बता रहा हूँ वो आपको देखने नहीं मिलेगा, ऐसा एक रिसोर्ट बना, उसका क्रिएटिविटी भी अलग है, उसका स्टाइल भी अलग है। रणथंभौर इज 30 रूम अगेन, बट वी कैन इंक्रीज टू अनदर 30-40 रूम। वो ज्यादा बड़ा पार्सल लिया है। देयर इज सम टेक्निकल इश्यू ऑफ क्लियरेंस ऑफ रोड, अगर वो हो जाएगा तो वो भी हम नेक्स्ट सीजन में तो चालू करना चाहते हैं। जवाई के अंदर 30 रूम बनाने जा रहे हैं, वो केव रिसोर्ट है, पूरा केव, वहाँ के जो स्टोन है वो स्टोन के अंदर जैसे आदमी रहता है तो कैसा लगता है, तो ऐसा फीलिंग देने जा रहा है केव रिसोर्ट। उसके पीछे भी हमने जस्ट वर्क स्टार्ट किया है। वी एक्सपेक्ट कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24 में पूरा हो जाएगा। अडालज इज अगेन जस्ट लाइक थीम पार्क काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, जहाँ गेम जोन है, जहाँ वेडिंग सीजन, जहाँ म्यूजिक प्रोग्राम, जहाँ अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में अराउंड 1 करोड़ पब्लिक सिटीजन रहते हैं, तो उसके हिसाब से प्लान किया है। दीव नागवा भी 37 रूम, दमन दमन का कच्ची गांव बॉम्बे वाले और सूरत के लिए बनाया गया है। आपके किसी का भी वेडिंग हो तो वेडिंग का डेस्टिनेशन वेडिंग का एक प्लेस है, जो पूरा झील है, तालाब है बहुत बड़ा, और तालाब में 3 आइलैंड है। वो तीनों आइलैंड पे 3 वेडिंग के डिफरेंट स्टाइल के मेहंदी रस्म, रिसेप्शन, वेडिंग, बोटिंग, देन आफ्टर स्टेइंग, सारी कैपेसिटी हम तैयार करने जा रहे हैं कच्ची इधर दमन के कच्ची गांव में। किहिल के अंदर और काशिद के अंदर 40-40 रूम के टेंट सिटी बन रहे हैं, जो हाई एंड टेंट सिटी है, जो बॉम्बे वाले लोग को ज्यादा बेनिफिट नजदीक का उसका यूटिलाइजेशन कर सके, उसके हिसाब से तैयार करें, और वो एग्जैक्टली ऑन सी शोर है। ओके तो सर अयोध्या मैंने बताया 300 रूम, 300 मीटर के बाजू वाली 1 है, उससे 3 किलोमीटर दूर अयोध्या 2 है। वहां से हमारे गेस्ट 2 के जो बुक किए हुए गेस्ट है वो 1 में व्हीकल पार्क करके मंदिर में जा सकेंगे, क्योंकि हमारा ऑथोराइजेशन होगा, पास होगा प्रवेश का, तो वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट है। वहाँ 75 रूम बनाने जा रहे हैं, 75-80 रूम, तो उसका भी रिस्पॉन्स काफी गजब आने जा रहा है 4th क्वार्टर में। तो सारे हमारे एक्सपेक्टेशन और उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। मेरा काम करने का है, हम विजन मिशन पे काम करते हैं। नाउ ब्लेस ऑल ऑफ कंपनी कि उसका क्या सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं नए रिसोर्ट के हिसाब से, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन। ओके सर, इस पे अभी नेक्स्ट ये जानना था, अभी आप बोल रहे थे जैसे आप 20% एक स्टेट में मतलब आप करना जा रहे हैं, तो अभी मेजर अपन मतलब सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि गुजरात में अभी मेजर नया रिजॉर्ट नहीं आएगा, जो भी आएगा नई ज्योग्राफीज में आएगा। जैसे आपने ऑलरेडी राजस्थान महाराष्ट्र में स्टार्ट कर दिया है आफ्टर उत्तर प्रदेश, तो
आपका थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर दूं, गुजरात के अंदर सिर्फ 4 रिसोर्ट है। हाँ, दीव दमन, yes, got it. दीव दमन इज सेंट्रल Yeah. गवर्नमेंट, सेंट्रल टेरिटरी। Got it. ये कई इन्वेस्टर उसके बारे में अलग अलग लिखते हैं, बट दीव दमन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। Correct. स्टेट गवर्नमेंट में 2 रिसोर्ट है हमारे चालू, कच्छ और ये केवड़िया, और उसके अलावा जो हमने बताया आपको वेलावदर, वो हमारा ओन रिसोर्ट है, तो इसमें गवर्नमेंट को लेना देना नहीं है। इसी तरह अडालज है, वो गवर्नमेंट ने 30 साल के लिए दिया है बराबर, और एक धौलावीरा है जो हमारी खुद की लैंड है, यानी कि पीपीपी मोड पे सबसे कम रिसोर्ट हमारे गुजरात में है। 3 रिसोर्ट है ओनली। ओके। दीव के अंदर 3 है, दमन में 3 है, 2 है महाराष्ट्र में, दो है हमारे, 3 है हमारे उत्तर प्रदेश में। जितने उत्तर प्रदेश में उसमें गुजरात में है, तो दीव दमन को आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। दीव दमन इज सेंट्रल गवर्नमेंट है। ओके, सो आप जो 20% की बात कर रहे थे, दैट फॉर पीपीपी मॉडल केवल ये बात कर रहे थे? हाँ, पीपीपी। ओके, तो सर अभी दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सदर्न कंट्री, मतलब साउथ इंडिया और वो पार्ट में, वहाँ से कोई गवर्नमेंट ये सारे इनिशिएटिव में कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे केरला वगैरह, अपना गोवा वगैरह साइड से, या अभी भी कंसेप्ट वहाँ पे चालू नहीं हो रहा है? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी टीम अक्रॉस इंडिया वर्क कर रही है। काफी स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए पॉजिटिव है। आपको फ्यूचर में देखने मिलेगा सारे साउथ इंडिया में प्रवेश, मे भी आपको नॉर्थ ईस्ट में भी मिल सकता है नेक्स्ट 28 के टारगेट में। इसी तरह जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेके उत्तराखंड से लेके अच्छे लोकेशन पे हमारी नजर है। गवर्नमेंट ऑल्सो ईगर, और उसके लिए जब भी टेंडर आएंगे तो जो अच्छे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इस पे कवर हम काम करने जा रहे हैं। तो और जहां गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है वहां हमारा लैंड एक्विजिशन का भी तैयारी चल रहा है कि जहां जरूरत पड़ेगा हम लैंड एक्वायर करेंगे। ग्रेट, गुड टू हियर सर। सर दूसरी बात, जो अभी अपने जो 2 रिसेंट एक्विजिशन हुए हैं, एक 5 स्टार होटल्स के लिए, सो उसमें मतलब अहमदाबाद के आजू बाजू एरिया के थे, तो उसमें मतलब वहाँ ही रिस्ट्रिक्ट रह रहे हैं या वहाँ पे भी अपन डाइवर्सिफाई करने का सोच रहे हैं एग्रेसिवली? जैसे अभी जो अपना रिजॉर्ट वाला, टेंट सिटी वाला, जो अपना सेमी स्ट्रक्चर वाला जो चल रहा है, तो सेम वे में एग्रेसिवली वहाँ पे भी अपन कुछ सोच रहे हैं, या दिस वाज द वन ऑफ अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आई थी तो अपन ने कर ली और उसमें अपना फोकस रहेगा कि नहीं? मैं आपको क्लियरली बताऊं, Praveg is an experiential hospitality company. Correct. The 2 hotels, which one is we have acquired of Grand Elogia Group, is in Ahmedabad. Grand Elogia is Sindhuban Road, is in Ahmedabad. You know the Ahmedabad is the headquarter of Praveg, and we have a mass relationship here also. हम वेडिंग सीजन, अभी वेडिंग बिजनेस में आ रहे हैं अडालज में। आपको मैंने पहले बताया, अडालज की अहमदाबाद के अंदर ही ऐसा कि अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में है। तो ये जो इलोगिया ग्रुप की स्पेशलिटी थी वो वेडिंग होटल्स की थी। ओनली वेज वेडिंग होटल है ग्रैंड इलोगिया के पहले की इलोगिया, जो मर्जर करने हम जा रहे हैं। इसके पास सारा टीम, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर वेडिंग के हिसाब से बना है, और वेडिंग के मास्टर लोग हैं। उसमें हार्ड पार्ट से अच्छा सॉफ्ट पार्ट है वो लोगों में, हार्डकोर हॉस्पिटैलिटी के लोग हैं। तो वो ग्रुप एक्वायर करके अहमदाबाद के अंदर वेडिंग का काफी बड़ा बिजनेस है, वो हम कैटर करने जा रहे हैं। उसकी वजह से हम कच्ची गांव में भी हम अहमदाबादियों को ले जाएंगे, या बॉम्बे सुरती लोगों को ले जाएंगे। इसी तरह केवड़िया टेंट सिटी में भी ले जाएंगे, जो आज तक हम नहीं करते थे और बहुत कम करती थी प्रवेश वेडिंग का काम। तो अभी एक सेगमेंट ऐड किया है अदालत में, तो एक काफी अच्छा पार्क बनने जा रहा है वेडिंग के हिसाब से, डेस्टिनेशन जैसा। थोड़ा अहमदाबाद से 5 किलोमीटर दूर है, बट अहमदाबाद में काफी पार्टी प्लॉटों का चलन है, जो बहुत बड़ा ट्रैवल इकोनॉमी है, वेडिंग इकोनॉमी। तो उसको कैच करने के लिए सिंधुभवन रोड पे हमने 3 बैंक्वेट बनाए हैं। 3 फ्लोर पे बैंक्वेट 3 है और 3 फ्लोर पे रूम है। रूम पे फोकस हमारा 25% है, 50% फोकस वेडिंग पे है। तो वेडिंग का बिजनेस एक्वायर करने के लिए, और हमारा सोशल प्रेजेंस इधर है हमारे सारे ग्रुप का, तो उसकी वजह से हमने, हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा था
कि हम उसको बुक कर पाएंगे, उसको बिजनेस ले पाएंगे। और प्रवेग का मॉडल लाइट एसेट्स मॉडल है, तो इसमें हम इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो सेम कॉपी आपको बॉम्बे में नहीं मिलेगी, सूरत दूसरी कोई जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ अहमदाबाद के लिए। वो भी लाइट एसेट्स मॉडल, एक में लाइट एसेट्स मॉडल है जो ग्रुप का जो बनी बनाई पूरी 5 स्टार होटल प्रवेग में सिर्फ 5 से 6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके ले लिए हैं और 10 साल के लिए लीज एग्रीमेंट हुआ है उसका। करेक्ट करेक्ट। तो 6 करोड़ के अंदर हम काफी बड़ा, उससे काफी बड़ा बिजनेस एक्सपेक्ट करने जा रहे हैं एक ग्रांड इलोगिया में। और इलोगिया इज ऑलरेडी वर्किंग होटल इन एसबी रोड, तो वो तो ऑलरेडी बिजनेस करती है, तो उसको भी हम हमारे ग्रुप में लाएंगे तो और बिजनेस सिनर्जी होने वाली है। गॉट इट। बस वही लाइट एसेट, मतलब जो एसेट लाइट मॉडल था वो फोकस अपना शिफ्ट नहीं हो रहा है ना, वही जानना था। तो सर थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट सर। Thank you. May I request Vishnu sir, can you please come closer to the speaker while speaking? Okay. Now I am audible? Yes, sir. Okay. Ladies and gentlemen, you may press star and 1 to ask a question. The next question is from the line of Rishabh Vasa from Almond Global Securities. Please go ahead. सर थैंक यू फॉर माय गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। सर ये हमारा पहले लास्ट कॉल में महाराष्ट्र अपने लिस्ट में नहीं था, ये टाइम अभी अपने रिसेंटली अनाउंस कर दिया महाराष्ट्र के लिए, तो ये मीन्स काफी एकदम अचानक ऐसा अपॉर्चुनिटी आ गया क्या, ये पूछना था। सर टेंडर गवर्नमेंट का जो बिजनेस है, हाँ, वो मेरे को सीधा कोई आता नहीं है, वो टेंडर आता है, हमारा टेंडर डिपार्टमेंट उसको नजर होती है। सारे इंडिया से काफी टेंडर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम सब रिसोर्स पे वर्क कर रहे हैं। जहाँ भी हमें को लगता है तो उसको हम एक्वायर करने के लिए टेंडर भरते हैं और टेंडर लगता है तो अनाउंसमेंट होता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम 2 साल पहले आई नजर लगा के बैठे और उसका अनाउंसमेंट करने के बाद ही काम करेंगे, जब मिलेगा तभी अनाउंसमेंट होगा। कई टेंडर ऐसे भी है कि हम भरते हैं या नहीं भरते तो सवाल नहीं, अगर भरते और नहीं लगा तो उसका अनाउंसमेंट नहीं आता है। राइट सर। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि आपने जब ये प्रेस रिलीज दिया था ये इलॉग के एक्विजिशन के बारे में, इलोगिया के, उसमें 45 रूम्स बोला था और अभी आज जो प्रेस रिलीज है उसमें 76 ऑपरेशनल रूम्स है। सर देयर इज टू होटल, वन इज 1 नवंबर को स्टार्ट की, वो है सिंधु भवन रोड पे, जो ग्रांड इलोगिया आप बोलते हैं, ग्रांड वर्ड आगे है ग्रांड इलोगिया, वो 76 रूम है। और दूसरी जो हमने अभी रिसेंटली जो मर्जर किया वो है इलोगिया, वो 45 रूम की है और उसके अंदर बैंक्वेट है 2-3 जो बैंक्वेट के लिए फेमस है। सो एक्विजिशन इज नॉट, हाँ वो इसमें नहीं है इंक्लूडेड। ओके सर, मैं नहीं कर सकता हूँ, अभी एक्विजिशन आया, एनसीएलटी का अप्रूवल आएगा तब वो अंदर आ जाएगा कम में। सर ये वेडिंग डेस्टिनेशंस में सेम काइंड ऑफ एक्विजिशन आर वी प्लानिंग इन द अदर स्टेट्स आल्सो लाइक राजस्थान एंड ऑल दिस? Already stated earlier. Okay. We want to keep our company asset light model. Ilogia acquisition, Ilogia जो भी recently acquired किया, it is only due to acquire manpower, resources, experienced person, experienced group. That's why we taken such outstanding step to take that hotel, and to manpower is very important in all this kind of organization. Yes. So that's why we have taken exceptional decision of acquiring Ilogia SB Road. Ilogia SB Road is different. Ilogia SBR is different. SBR is a 5-star property like Taj, like Oberoi, like ITC. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. The next question is from the line of Aditya Mehta from GK Capital. Please go ahead. Yeah, hi sir. Thanks for the opportunity. Sir, ये जो हम मार्च तक 19 और 20 रिजॉर्ट्स कर लेंगे तो विद इन FY25 हम उसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर हमारा ऑक्यूपेंसी का एक्सपेक्टेशन 50% का है एवरेज। ये जस्ट जनरल पैच आंसर है मेरा, कोई में अच्छा भी हो सकता है, कोई में, लेकिन एवरेज 50% हम गिन रहे हैं। ओके, एंड इसमें एमिटा मार्जिन जो है 50% प्लस रहेंगे?
हमारा EBITDA मार्जिन ये साल पर्टिकुलरली 24 के अंदर थोड़ा स्ट्रेस्ड रहेगा ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरहेड विच इज लेड डाउन ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्ट. ओके. और सर ये जो रूम्स हम 200 से 1000 रूम्स तक एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसकी फंडिंग का क्या सोर्स रहेगा? Already we have acquired the funds for 15 resorts. These 21 resorts, we need a 6 resorts funding. For that, we are planning to invest from promoter group if required. Oh, okay, sir. Thank you, sir. All the best. Thank you. A reminder to all the participants, you may press star and 1 to ask a question. The next question is from the line of Bhavin Pandey from Athena Investment. Please go ahead. Sure. Thank you, sir, for taking my question again. I just wanted to understand your perspective on this events business. How are we looking at it, and what is the growth trajectory that we are seeing for this? So, exhibition and event management and advertising is a core area of Pravec. Already, we are providing real estate advertisement and management marketing services. Apart from that, we are also keeping eyes on government business of exhibition and event management, provided we get a reasonable EBITDA margin. Third, we have already earlier stated that our all team are deployed for the resort. Extraordinary opportunity came to the Pravec, and we want to achieve that resort to be operationalized. So that's why we take only such a work where we get a good EBITDA margin of above 15 to 20%. In that case, we will work on that kind of project. Apart from that, exhibition events के अंदर भी हमारा एक एफर्ट चल रहा है कि कैसे हम ये बिजनेस को भी आगे ले जाए, और उसके लिए कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चल रहा है. फ्यूचर में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसका भी आपको इंटीमेट किया जाएगा. Okay. That was helpful, sir. Thank you. All the best. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, you may press star and 1 to ask a question. As there are no further questions from the participant, I now hand the conference over to Mr. Gopal Chandak from Kirin Advisor for closing comments. Over to you, sir. Thank you. Thank you everyone for joining the conference call of Pravec Limited. If you have any query, you can write us at info@kirinadvisors.com. Once more, thank you everyone for joining the conference. Thank you. On behalf of Kirin Advisor, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.